Hello, hello everyone. Today we are going to discuss about introduction part of Indian Railways and the gauge part, gauge length, and all these things, and the coning of wheels. We can further proceed our discussion of introduction of railways. Let us discuss our today's lecture. So, first of all, in the last lecture we have discussed about the weakness of Indian Railways. What are these overaged infrastructure, and old technology. Uh, in the last lecture, we have discussed about old technology, large force of unskilled manpower, resource constraint, rationalization of tariffs for a long period of time, pilferage and vandalism. Basically, pilferage and vandalism, like stealing the things and destroying the things in the railways. Okay, especially in Tejas Express, like we have corruption, lots of bureaucracy, no competitor, lack of consumer orientation, safety, reliability. Okay, these are the things we have discussed in our last lecture. I have shown some of the pictures of Tejas Express about how the vandalism and pilferage can destroy our railways, like weakness, how they can be the weakness. I have shown some photos in our videos. This is Tejas Express, the outside view and the inside view. These are the inside view of the compartments. See how clean they are. Like they are brand new compartments. Like they are really very clean. This is our AC compartment, and these are the toilets. See how much clean they are. And these are the wash basins. There is a painting like like a hotel. It is very beautiful, really very beautiful. And after the 15 days of our, this is our case study on Tejas Express. We have observed like these garbage is dumped in the sink and below the seats, like this bottom, this beer bottle and garbage is dumped all there. And there is a lot of problem like water bottle and the waste, food waste, and the wrappers. Like all of the things are not dumped very carefully. There's a lot of carelessness. This shows our lot of carelessness towards public property. And this is the destroying water tap. It destroyed and this thrown there. I have circled with the red dots, and these are the pictures. So basically we have to overcome these factors, and let us discuss about further like what are the main competitors and like threats to Indian Railways. Okay, the low cost airlines. The low cost airlines, basically the main threat for the Indian Railways. The airlines consume very less time as compared to railways, and also if they are low cost as similar to railways, so nobody can prefer the railways. Rather, हर कोई everyone can prefer low cost airlines. Okay, so improvement of other infrastructure, like if the roadways have improved now, these are days we can see the roadway infrastructure is really improving. So this may be the threat, but it is not like really very big threat, but it may be the competitor for the Indian Railways. And cheap cars, easily available loans. uh, when the banks provide very easily available low interest loans, then the person can buy cars rather than traveling through railways. The cars provide door to door service. Okay, the soft target, rally and agitation, and the terrorism. uh, I have shown in the pictures, like this is the rally and agitation. Like the rally may be of different kinds, like there are few examples. Like this is our country, like in which rallies and agitation, these are really very common. And terrorism is also very dangerous thing. This have seen the train accident, uh, really very devastating and catastrophic. Like destroyed all the parts of the component bogie. Like the tires are thrown away very under springs. Like this is very really very dangerous accident. So this may be of terrorism or train accident, and these both are the really very major threats to Indian Railways. So let us discuss about some statistics of 2018-19. This is the 31st March 2019 statistics. I have shown the country Australia in the map in the green. Wait a minute, there is some problem. I can show it again. Okay, let us discuss about this. There's a country, Australia, I have shown in the green. This is really, and its population is nearly 1 million, about 10 lakhs. Okay, let us discuss about data of the Indian Railways, which I am showing here.
The route kilometer of Indian Railways is 67,415 kilometers. Okay, and the running track kilometer is 95,981, and the total track kilometer one lakh 23,542 kilometers. Okay, electrified route, how much route up to the 2019 electrified 34,319. Okay, number of stations 7,321 annually. This is the annual data of passengers traveling through the Indian Railways, 8,439 million पैसेंजर्स इंडिया के अंदर 8,439 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं एनुअली रेलवेज के अंदर, जो कि इसका एवरेज निकल के आता है 23.1 मिलियन अ डे। लाइक अगर इसका एवरेज निकालेंगे डेज के हिसाब से तो 23.1 मिलियन आएगा, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? 1 मिलियन। अब मतलब इसका कहने का मतलब समझ रहे हो, एनुअली 1,221.48 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट अपन लेके चलते हैं और इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेके चलते हैं। फ्राइट मतलब इट मे बी गुड एंड इट मे बी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक वेट्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ओके, तो आप देख रहे हो एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को इससे भी 23 गुना ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन इंडियन रेलवेज एक दिन में ट्रैवल करा सकता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ इंडियन रेलवेज। सी हाउ मच एंड हाउ लार्ज इज अवर इंडियन रेलवेज। ओके, let us discuss about locomotive and rolling stocks, and how much rolling stock we have till now. We have 12,000 locomotives, 12,147 locomotives basically ट्रेन का इंजन होता है। अपने पास 12,147 ट्रेन के इंजन है 2019 के डाटा तक। ओके, कोचेज़ कितने हैं अपने पास टोटल? 74,003। ओके, 74 मतलब 74,003। अब ये कोचेस क्या होते हैं? जो ट्रेन की बोगियाँ होती हैं उनको कोचेस बोलते हैं अपन। ओके, फ्राइट वैगन्स 2,89,185। फ्राइट वैगन्स बेसिकली ये जो शो है ना साइड में, फ्राइट वैगन से जिस पे अपन कोई भी रोलिंग्स मतलब कुछ भी अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वायरिंग वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो ये बेसिकली अपने पास 2 लाख हैं। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अपने पास। अर्निंग्स कितनी होती है, कितना प्रॉफिट ये जनरेट करता है, वो ये सब चीज़ें। पैसेंजर्स कितने पैसे दे देते हैं? 51,66.65 करोड़, मतलब 51,000 करोड़ ये अर्निंग है। और फ्राइट्स के थ्रू कितनी अर्निंग आती है? 1,22,580 करोड़। ये बहुत ज़्यादा है। इतना तो रेगुलर एम्प्लॉय कितने हैं इसके? ये मतलब ये एनुअल है। ओके, ये एनुअली अर्निंग है। ओके, रेगुलर एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं इसके? 12.27 लाख। सी I have shown the data of Indian Armed Forces 14,44,500 एक्टिव पर्सनल्स, मतलब 14,44,500 इतने इंडियन आर्मी के अंदर एक्टिव पर्सनल हैं, एक्टिव जवान हैं। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर एक्टिव पर्सनल्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपनी इंडियन रेलवेज आती है। इतने रेगुलर एम्प्लॉयज़ अपने पास 12.27 लाख 12,27,000 इतने रेगुलर एम्प्लॉय है। तो सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट इंडियन रेलवेज के जोन्स, हेडक्वार्टर्स और डिविजन्स। आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट सो यू कैन इजीली शोन, लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको देखने में। पहला जो जोन है अपना सीरियल नंबर 1 सेंट्रल रेलवेज, इसका रूट किलोमीटर कितना है सेंट्रल रेलवेज का? 3,905। और इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह पे है? मुंबई। ओके, अब इसके अंदर डिविजन्स कौन कौन से आते हैं? डिविजन्स मतलब बेसिकली जोन्स के अंदर कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से डिविजन्स बना रखे हैं अपन ने। मुंबई, भुशवाल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, ये अपनी सेंट्रल रेलवेज के डिविजन्स हैं। ओके, बेसिकली देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन माय लैपटॉप। हाँ, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन। या सेंट्रल रेलवेज, ये अपना सेंट्रल सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्टर्न सेंट्रल ईसीआर, इसका जो रूट किलोमीटर है वो कितना है? 3,628। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिविजन्स आते हैं। दानापुर, ये बिहार की तरफ वाला एरिया है। धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर। ओके, इस टाइप से अपने पास 17 जोन्स हैं। और मैंने आपको बताया था याद हो तो कोलकाता मेट्रो, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं है, ये खुद ही में एक डिवीजन और जोन है।
और उसके टोटल रूट किलोमीटर कितना है 24.5। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे छोटा जो है जोन अपना रूट किलोमीटर के हिसाब से कोलकाता मेट्रो का ही है, जो कि 24.5 किलोमीटर का है सबसे छोटा। और जो सबसे बड़ा अपना जो पड़ता है वो पड़ता है नॉर्दर्न NR, नॉर्दर्न रेलवेज। आर मतलब रेलवेज, सेंट्रल मतलब सेंट्रल रेलवेज। नॉर्दर्न रेलवेज का पड़ता है 6968। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली इसके अंदर कौन कौन से डिवीजन है? दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। बेसिकली आपको सब कुछ याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार देख सकते हो कि कुछ कुछ कई बार क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटा जोन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता। इफ़ अगर पूछते हैं सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो आप कह सकते हो नॉर्दर्न रेलवे का जोन है। एंड तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, एंड आगे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिस डाल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। ये नोटिस बेसिकली क्या है? ये नोटिस है एक न्यू जोन का सेटअप हुआ था रायगढ़ में। ये कई बार वेबसाइट्स में नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ये डाला है। 2019 में एक नया जोन बना है रायगढ़ में। ये कौन से उसके अंदर बना है जोन के अंदर? ये साउथ कोस्ट जोन के अंदर बना है, SCOR। देखो इसमें SCOR कहाँ पे है? SCOR, सेंट्रल रेलवे जोन 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 जोन। ओके, इसमें मैंने डाला नहीं है। बेसिकली ये जो नया डिवीजन बना है ना, ये मतलब एक नया जोन का क्रिएशन हुआ है साउथ कोस्ट रेलवेज का। SCOR एक जोन है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, और एक नया जोन बना है इसके अंदर रायगढ़, और इसका नाम ये मतलब साउथ कोस्ट ऑफ रेलवेज के अंडर ही आता है ये। तो ये 18th जोन है अपना। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जोन्स अपने पास 2019 के बाद कितने हो गए? 18, इंक्लूडिंग SCOR, साउथ कोस्ट रेलवेज। ओके, ये कई बार लोगों को पता नहीं होता। सो PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के अंदर जो जो कंपनीज आती थी अब तक, ये वो कंपनीज हैं जो इंडियन रेलवेज के अंडर आती थी। इसमें कौन कौन सी हैं? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL, ये PSU है एक अपनी। इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC, आप सभी फेमिलियर होंगे, इसकी वेबसाइट से आप टिकट करते हो सब लोग। कोकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, KRCL। ओके, अगली है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली इन PSUs का अलग अलग काम है। जैसे पहली जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन है, ये फ्राइट रिलेटेड चीज़ों से डील करती है, लाइक फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन सब चीज़ों से। और IRCTC वाली जो है, आपको पता है, खाने पीने की चीज़ और जो आपके टिकट्स वगैरह की चीज़ होती है, इन सब से डील करती है। ओके, इन सब PSUs का अलग अलग यूज़ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। ओके, या दिस इज इट। हाँ हाँ, और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, ये कोकण जो अपना जोन है उसके उसके लिए है स्पेशली। फाइनेंस को जो मैनेज करती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके लिए अलग से एक PSU है। और मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन, ये एक अलग PSU है अपने पास। ऐसे कर करके रेल तेल, ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है रेलवे का, रेल TEL, ये एक PSU है, ये मैनेज करती है। और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज, आपको पता होगा, RITES, ये भी एक रेलवे की सर्विस है। और कंसल्टिंग डिवीजन है ये इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, इरकॉन। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इरकॉन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है रेलवे के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम को डील करती है। ओके, कंस्ट्रक्शन डिवीजन के अंदर आती है ये। रेल विकास निगम, RVNL, ये आप जानते होंगे, इसके अंदर भी कई बार आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं RVNL के अंदर। ये एक तरह से रेलवे की ही PSU है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, RLLDA, इसके अंदर जो भी ज़मीन के जो लेन देन के काम होते हैं वो RLDA होता है अपना। ओके, मतलब डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट करना होता है रेलवे की लैंड्स का, वैकेंट लैंड्स का, उनका RLDA ही करता है डेवलपमेंट। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेजर सॉफ्टवेयर्स, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डीलिंग होती है वो CRIS करती है अपनी। मतलब अब IRCTC के रिलेटेड अगर आपको टिकटिंग सिस्टम इम्प्रूव करना है, वेबसाइट बनानी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इस PSU के अंदर आता है। ओके, पिपाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, PRCL, एंड भारत वागन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, BVL। ओके, ऐसे कर करके काफ़ी सारी अपने पास ये PSUs हैं। इफ़ कोई एग्ज़ाम में अगर या कहीं पे भी पूछ लिया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए इसमें मैंने पहली कॉलम में यूनिट लिखी है, मतलब कौन सी जगह पे यूनिट लोकेटेड है, और मतलब यूनिट का नाम क्या है। दूसरी जगह पे मैंने उनके हेडक्वार्टर लिखे हैं कि उस यूनिट का हेडक्वार्टर किधर है। तीसरी कॉलम में मैंने लिखा है प्रोडक्शन, मतलब वो यूनिट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उसका काम है, मतलब किस फील्ड में वो काम करती है। ओके, लेट अस डिस्कस चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये जो यूनिट है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेसिकली सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाती हैं, ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं ऐसी। ये अपनी टोटल कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो प्रोडक्शन है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, ये इस टेबल में शोन है, वेल डिफाइंड है। तो लाइक वी कैन डिस्कस नाउ डीजल लोकोमोटिव वर्क। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, वाराणसी यूपी। ये क्या काम करता है, ये बनाता है डीजल लोकोमोटिव। जितने भी डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव, डीजल से चलने वाले इंजन, ये बनते हैं सर डीजल लोकोमोटिव वर्क के अंदर। ओके फ्रेंड्स, चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसका हेडक्वार्टर अपना है चित्रांजन, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन हैं उनको ये प्रोड्यूस करता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर है। ये कोचेज, ये किसका प्रोडक्शन करती है, ये सिर्फ बेसिकली कोचेज जो अपने सिंपल कोचेज होते हैं उनका प्रोडक्शन ही करती है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, फॉर्मली डीजल कंपोनेंट वर्क्स। ओके, वी आर हियर, वी कैन डिस्कस इट। हाँ, अपन यहाँ पे थे, ये थोड़ी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रखी है। हाँ, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क फैमिली, फॉर्मली इसको क्या बोला जाता है, डीजल कंपोनेंट वर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पटियाला पंजाब में है। ये डीजल कंपोनेंट से रिलेटेड अपनी डील करती है प्रोडक्शंस को। रेल कोच फैक्ट्री, ये किधर है सर, कपूरथला पंजाब। ये भी कोचेज़ बनाने में रिलेटेड डील करती है। रेल कोच फैक्ट्री अगेन रायबरेली है, ये दूसरी जगह यूपी। ये आजकल के जो मॉडर्न कोचेज़ होते हैं, कोचेज़ भी दो तरह के होते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, ये मॉडर्न कोचेज़ को तैयार कराई जाती है। रेल व्हील फैक्ट्री, ये इसको पहले वेल एंड एक्सल प्लांट भी बोला जाता था। ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, के फॉर कर्नाटका। व्हील्स एंड एक्सल्स, जो मतलब पहिए और जो एंगल्स वी एक्सल्स होते हैं ना, जो पहियों पे जो एक्सल्स लगती हैं, उनको ये डील करती है। रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में है। ये व्हील सिर्फ ओनली व्हील से डील करती है। दैट्स इट। एंड अदर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो अदर हैं, अदर देन PSUs एंड अदर देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसे कौन कौन सी हैं सर, मैंने लोगो दिखाया हुआ है। एक तो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफाइड एंड COMOW, इंडियन रेलवेज की ये दो अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफाइड, ये इलाहाबाद में है। और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ये इलेक्ट्रिफिकेशन से डील करती है, इलाहाबाद वाली। न्यू दिल्ली वाली वर्कशॉप, जो भी काम होता है, मतलब जो भी इसकी रिपेयरिंग का काम होता है वो इसमें होता है। ये इसका हेडक्वार्टर है सर न्यू दिल्ली में, और इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, वर्ल्ड बैंक, जैसे एजुकेशन और रिसर्च। हाँ, मतलब रिसर्च और एजुकेशन के लिए अपने इंडिया के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स और कौन कौन सी मतलब मतलब स्कूल्स हैं, ये सब इसमें है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO लखनऊ में ये है, ये अपनी रिसर्च से डील करती है। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, इसको पहले फॉर्मली रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो कि वडोदरा में है। और इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सिविल इंजीनियरिंग के जो इंडियन रेलवेज के लिए स्पेशली जो होती है सिविल इंजीनियरिंग, वो IRICEN पुणे में होती है। ये सारे कॉलेजेस हैं। ओके, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET सिकंदराबाद। एंड इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IREMEEE जमलपुर। एंड इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IREEN नासिक। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट IRITM। ये सारी जितनी भी मैंने दिखाई हैं, सारी की सारी रिसर्च या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। ओके, ये मैंने एक हायरार्की चार्ट बनाया है कि मतलब आपने देखा होगा कि कई बार पूछ लिया जाता है कि हायरार्की कौन किससे सीनियर है, कौन किससे बड़ा है। ये मोस्टली कॉलेज एग्ज़ाम्स में या फिर इधर ज़्यादा पूछा जाता है।
तो इसमें ये है स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ आप जानते ही हैं, इसके अंदर फिर स्टेट रेलवेज़ की मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, फिर रेलवे बोर्ड बना होता है, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं अपने, चेयरमैन होता है एक रेलवे बोर्ड का, और ये जो मेंबर इलेक्ट्रिकल होता है, मेंबर स्टाफ होता है, मेंबर इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल मेंबर होता है, ट्रैफिक मेंबर, फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। इन सब से रेलवे बोर्ड बना होता है। चेयरमैन चूज़ किया जाता है इन्हीं में से। इस चेयरमैन ये किसका सेक्रेटरी होता है, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं या जो भी असेंशियल मैटर्स हैं उनका ये सेक्रेटरी होता है। और ये डायरेक्टरेट जनरल होते हैं रेलवेज हेल्थ के, और डायरेक्टरेट जनरल होते हैं आरपीएफ के। ओके, ये मेंबर ऑफ स्टाफ के अंदर आते हैं, ये एरो शो कर रहा है ना कि मेंबर ऑफ स्टाफ के अंदर आते हैं। और चेयरमैन के अंदर ये वाला आता है, ये सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी होता है। इसके नीचे हायरार्की में अगर ऊपर उतरते हैं, जोनल रेलवेज़ हैं, अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स हैं, पीएसयूज़ हैं। पीएसयूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में, मैंने फुल फॉर्म में पीछे पीडीएफ में अपनी पावर प्रेजेंटेशन में पीछे दिखा रखी थी। ये जितने भी पीएसयूज़ हैं इनके फुल फॉर्म्स उधर हैं। एंड ओफो, आज तो काफ़ी डिस्टर्बेंस दे रहा है। या बजट्स, हाँ। अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, जनरल मैनेजर्स, सीएओ, डायरेक्टर जनरल एंड एक्स ऑफिसर जनरल मैनेजर। बेसिकली जोनल रेलवेज मैंने आपको सारे जोन्स बता ही दिए थे, इतने टाइप के जोन्स हैं, ये इतने टाइप के जोन्स हैं अपने से, 18 जोन्स है टोटल। ओके, ये डबल स्टार जो मारा हुआ है नीचे, रेलवेज मेट्रो रेलवेज कोलकाता पे मारा हुआ है, ये देखो यहाँ पे स्पेशल। और ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मैंने आपको सारी प्रोडक्शन यूनिट, चित्रांजन डीजल लोकोमोटिव वाराणसी वाली, चेन्नई वाली, और कोच फैक्ट्री कपूरथला वाली, ये सब आपको बता दी थी। ओके, ये CAO इट्स डीजल, ये भी अपनी वही हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स ही हैं। ये पटियाला में है, ये बेला में है, ये न्यू यूनिट्स हैं, मतलब ये लेटेस्ट यूनिट्स हैं। ओके, ये दोनों लेटेस्ट यूनिट्स हैं। जनरल मैनेजर्स, अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताई थी। कंस्ट्रक्शन से डील करने वाली, इलेक्ट्रिफिकेशन से डील करने वाली, COFRE। ओके, CO ये जो वर्कशॉप से डील करने वाली, COFMOW, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, लाइक ये अल्टरनेट फ्यूल्स है, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब यहाँ पे है। डायरेक्टर जनरल, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ, डायरेक्टर जनरल और एक्स ऑफिसर जनरल मैनेजर, RDSO कहाँ पे बैठता है सर, ये RDSO लखनऊ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है सर। ये जो मतलब ये जो CAO है ना, इस यूनिट्स में ये सब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का कहने का मतलब है, इसका इस ऑफिस से, इस पर्टिकुलर ऑफिस से यहाँ पे डील किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी हायरार्की है। इनके जनरल मैनेजर्स यहाँ पे बैठे जाते हैं। सो लेट अस प्रोसीड। अवर ये मैंने एक डाली है इंडियन रेलवेज की, अगेन हायरार्की डाली है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। ओके, जोन देखो, इंडियन रेलवेज के अंदर जोन्स आते हैं, जनरल मैनेजर होता है जोन का एक पर्टिकुलर, जैसे 18 जोन्स है तो हर एक जोन का एक जनरल मैनेजर होगा। ओके, उसके अंदर डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स के क्या होते हैं, DRM और ADRM, डेप्यूटी और असिस्टेंट डेप्यूटी। ओके, ये सब जनरल, ये मैनेजर्स ही होते हैं, लेकिन ये डिवीजन के मैनेजर होते हैं। ओके, इनके अंडर आते हैं सीनियर DPO, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, सीनियर DMM, सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, स्टोर्स डिपार्टमेंट। ओके, CMS, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये मैंने सब पोस्ट डाली हुई है। DOM होता है अपना सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। ये सब इसके अंदर हायरार्की डाली हुई है, और कौन से डिपार्टमेंट में ये भी शो किया हुआ है। ये काफ़ी हद तक जैसे अपना काम आता है एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला, सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, DFM। ओके, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सीनियर DSC, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, ये पोस्ट के नाम है इधर, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है वो पोस्ट, उसके नाम है। ओके, सो मतलब आपको कई बार कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो गए, मतलब जनरल एग्ज़ाम्स हो गए, इनमें कई बार पूछ लिया जाता है जनरली। तो ये इंट्रोडक्शन में ये पूरा पार्ट अपन आगे प्रोसीड करते हैं। विजन 2020 के अंदर कौन कौन से विजन थे इंडियन रेलवेज़ के, लेट अस डिस्कस अबाउट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अपने, बेस्ट इन द वर्ल्ड, अपन को बेस्ट करना है वर्ल्ड के अंदर। ओके, ये विजन 2020 में थे। और मल्टीप्लिकेशन, मतलब विजन 2020 एक बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो निकलता है विजन के नाम से। तो मतलब
उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइंस, मतलब लाइंस का मल्टीप्लिकेशन, जैसे सिंगल लाइन है तो डबल बनाना है, डबल को ट्रिपल करना है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को बढ़ाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। ओके, हायर स्पीड अटेन करनी है, ज़ीरो एक्सीडेंट, ज़ीरो फेलियर्स, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी मच अचीव्ड दीज डेज। ओके, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करना है, लाइक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट डेवलपमेंट अपने साथ साथ होगा। एंड हाँ, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, DFCC, मैंने आपको बताया था। फ्राइट कॉरिडोर स्पेशली उन चीज़ों से डील करता है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं। लाइक मैंने एक पिक्चर में शो किया है, ये एक फ्राइट कॉरिडोर है, इस पर जो वही चीज़ ले जा सकते हैं। ये मतलब ये तो अपनी जनरल पैसेंजर कॉरिडोर हो गया, और ये जो है अपना ये फ्राइट कॉरिडोर है। फ्राइट कॉरिडोर में बेसिकली कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता। लाइक जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं अपने, उसमें उसके रेलवे स्टेशन के बाहर से निकाल दी जाती है कई बार मालगाड़ी। ओके, तो फ्राइट कॉरिडोर ही होता है कई बार जंक्शंस पे। बेसिकली इसमें यही होता है कि गुड्स सर्विस और ट्रांसपोर्ट्स के लिए स्पेशली यूज़ किया जाए, अलग से इसलिए बनाया जाता है इसको ताकि इस पर डिस्टर्बेंस कम हो, मतलब जल्दी पहुंच सके। पैसेंजर ट्रेन तो रुक रुक के चलती हैं, इनको तो सीधे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाके रुकना होता है, तो टाइम की बचत हो, फ्यूल की बचत हो, एवरीथिंग। ओके, तो अपने जो फ्राइट कॉरिडोर है वो कैसे कैसे है मैं बता देता हूँ। दो तरह के फ्राइट कॉरिडोर एग्जिस्ट करते हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, और ये जो डैश 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 लाइन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब। ओके, और जो ब्लैक लाइन है ये एग्जिस्टिंग है। ओके, देखिए मैंने जो रेड लाइन से शो किया है ये है ईस्टर्न, ब्लू लाइन से है जो वेस्टर्न है। ये वेस्टर्न जो है JNPT आप लोगों को पता हुआ, जवाहरलाल नेहरू पंडित, ये जो पोर्ट है इधर मुंबई के अंदर पड़ता है। ओके, यहाँ से होते हुए इधर से आप जाओगे गुजरात में वडोदरा, सूरत, ये हो गया महसाना, पालनपुर। ओके, मारवाड़ राजस्थान में आ जाते हैं अपन, अजमेर, पुलहरा, रेवाड़ी, देहरादून, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, दिल्ली में आके ख़त्म हो जाता है वेस्टर्न। अब ईस्टर्न की बात करें अपन, ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक प्लेस है दनकुनी। ओके, अंधाल, गोमोह, सोननगर, मुगल सराय, इलाहाबाद, कानपुर, टुंडला, खुर्जा, मेरठ, सहारनपुर, अम्बाला, लुधियाना। ओके जी, डेडिकेटेड ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर ना सर एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। उस पॉइंट का नाम पता है क्या है? उस पॉइंट का नाम है कपूरथला। ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न आके मिल रहे हैं ना, ईस्टर्न बेसिकली पास से दिल्ली से ही हो रहा है, बट जो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे जो आके टच होते हैं उस पॉइंट का नाम है कपूरथला। ओके, यहाँ पे ये ईस्टर्न और वेस्टर्न से मैप में शो किए हैं। ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जीका है, ये जीका एक जापान की बैंक है। जापान की बैंक इसको कई बार फाइनेंशियल हेल्प देती है इंडिया के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर नहीं, मतलब कहीं भी वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बैंक कोई डेवलपमेंट वर्क करना हो किसी को, तो इन सब जगहों से अपन लोन ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक एक कॉरपोरेशन है। ये देखिए। ओके, सो लेट अस फर्दर प्रोसीडर्स। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इंडियन रेलवेज़ के अंदर ऐसी कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं जो कि इंडियन रेलवेज़ कंसिस्ट करता है उन चीज़ों को? जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ जो है अपनी, जो दार्जिलिंग के उधर चलती हैं, छोटी सी रेलगाड़ी होती है, छोटी सी पटरी होती है सर, ये बहुत प्यारी लगती है देखने में। ये वर्ल्ड मतलब ये यूनेस्को साइट है। वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स वो होती हैं दुनिया के अंदर, कुछ इंडिया के अंदर कुछ ही यूनेस्को साइट्स हैं, टोटल 40 के आसपास है। उनमें से ये रेलवेज़ की हैं जो यूनेस्को साइट्स भी हैं। एक मुंबई CST बिल्डिंग है, आपने देखा होगा, ऐसे स्टेशन रावण मूवी में भी दिखाया जाता है, टूट जाता है पूरा मुंबई का रेलवे स्टेशन, तो ये वही वाला स्टेशन है, मुंबई CST बिल्डिंग, ये भी यूनेस्को साइट है। ओके, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़, नीलगिरी सर ये जो ऐसी ही छोटी माउंटेन रेलवेज़ होती हैं, मतलब छोटा ट्रैक होता है, बहुत नैरो गेज होता है ये। ओके, और रेलवेज़ भी बहुत छोटी होती है, आप देख रहे हो टॉय ट्रेन लग रही है देखने में ही, मतलब काफ़ी छोटी ट्रेन होती है ये। कालका शिमला रेलवेज़, यहाँ भी मतलब जितने भी माउंटेनियर रीजन है ना, उसमें छोटी ट्रेन ही चलती हैं। बड़ी ट्रेन चलना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्टीप कर्व्स होते हैं उधर, बड़ा बड़ा वागन मुड़ने में दिक्कत हो जाएगी, छोटे वागन चलते हैं, मतलब छोटा छोटा लोकोमोटिव होता है। ओके, अदर फेरी क्वीन जो है ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है इंडिया का। फेरी क्वीन ऐसी है, ऐसी दिखती है ये फेरी क्वीन, इसका नाम रखा है फेरी क्वीन। ये चलती है ओकेशनली, इसको चलाया जाता है। और गोरखपुर, एक और फैक्ट है, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है
ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस उसकी लेंथ जो है 1366.33 मीटर, इतना लंबा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर यूपी में एक जगह है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन लड़ा करते हैं हर बार, वही जगह है ये। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट जो है इंडिया की रेलवेज़ में, सर ये चेनाब ब्रिज, ये रीसेंट डेवलपमेंट है इंडिया का। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। देखो कितना लंबा और कितना चौड़ा है, इसकी लेंथ और ब्रेथ देखते हैं अपन। मैंने यहाँ पे शो किया है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पिक्चर है ये चेनाब ब्रिज की। ये पूरी रेलवे लाइन है, ये वाइट लाइन ऐसे मेरी ये रेड डॉट जा रहे हैं, ये पूरी रेलवे लाइन है। इसका ये जो हाइट है, आईफिल टावर की हाइट आपको पता है कितनी है? 324 मीटर्स, उससे भी ये 34 मीटर 35 मीटर ऊपर है। इतना लंबा तो ये इसकी लेंथ है, मतलब हाइट है। एंड इसकी लेंथ है 359 मीटर्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज़ की रीसेंट अचीवमेंट्स में से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, बुक्स, बेसिकली बुक्स आप कौन कौन सी रेफ़र कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए? लाइक सतीश चंद्र और एम अग्रवाल, मतलब सतीश चंद्र इज़ बेसिकली फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर लाइक वोज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, उनके लिए बेस्ट है। ऑक्सफर्ड पब प्रेस की है ये। एंड रेलवे इंजीनियरिंग SC सक्सेना, DP अरोड़ा, ये भी मतलब बेसिकली है तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर है। सतीश चंद्रा के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रेफर कर सकता है, सेम मटेरियल मिलेगा, अच्छा खासा इसमें मटेरियल है। रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग JS मुंद्रे मैग्रॉ हिल्स की है ये। ओके, सो दैट इज़ ऑल आवर टुडेज़ लेक्चर। सो वी विल फिनिश। ये मैंने शो किया है कि यहाँ अमेज़ॉन वगैरह पे आप खरीद सकते हो, कहीं से भी रेफ़र कर सकते हो बुक्स को। ये इनके प्राइसेस हैं, ये मैंने यहाँ पे जो दिखा रखे हैं। ओके, सो अपना बचता है गॉज, तो अपन गॉज को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉज, ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो गया। लेट अस डिस्कस गॉज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू गाइस।